गांधी जी अगर होते तो कहते कि तुमने बहुत अच्छा किया, अब सारे मेरे विचार और तेज़ी से दुनिया भर में फैल रहे हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है। जहाँ तक इमरजेंसी का सवाल बात नहीं किया तो इस देश भर में जो हमारे जर्नलिस्ट थे उस समय, मैं 40-50 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 40 साल, लेकिन हम सबको लगा कि जो हमारी अंतरात्मा कहती है उसे हमें बिना किसी भय के, बिना किसी डर के हमें कहनी चाहिए, और कोई भी कीमत अगर हमें चुकानी पड़े तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। इस ख्याल से हमने काम। तो આજે જ્યારે કોઈ પણ કિંમત ચૂકવવી પડે એવી વાત સાથે આપણી વાત કહેવાની વાત આવે તો તમે એક યુવાન તરીકે શું માનો છો કે ખરેખર આવું થઈ શકે છે, આવું શક્ય? बाद के लोगों के सामने बैठा हूँ तो मैं कैसे निराश हो सकता? मुझे तो बहुत आशा है, और जो आपने बताया कितनी सही बात है। और मुझे भी कई बार जब मैंने गांधी की जीवनी मैंने भी लिखी है ना, कईयों ने लिखी है, मैंने भी गांधी की 700 पेज की लिखी है। वैसे गांधी की जीवनी जो मैंने अंग्रेज़ी में लिखी है, हिंदी में छप चुकी है, मराठी में छप चुकी है, कन्नड़ में छप चुकी है, लेकिन गुजराती में अभी तक नहीं छपी है। तो गांधी के बारे में जब मैंने कुछ रिसर्च किया तो मैंने अपने आप से पूछा कि ये गांधी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया था, एल्फ्रेड स्कूल में, और छोटी क्लास के बाद बड़ी क्लासों में तो वहाँ अंग्रेज़ी में पढ़ा गया था, और फिर वो अपने माँ बाप के साथ आसानी से बोल भी नहीं पाया क्योंकि वो लोग तो इतनी अंग्रेज़ी नहीं समझते थे। लेकिन इस गांधी ने गुजराती कैसे बढ़िया सीख ली और गुजराती को अपना जीवन दिया, गुजराती से उनका प्रेम हो गया, गुजराती भाषा का भी विकास गांधी के द्वारा भी हुआ। ये एक रिसर्च का सवाल है। गांधी की गुजराती पर बहुत और भी रिसर्च होना चाहिए, और कैसे गांधी जी ने गुजराती पे इतनी मास्टरी हासिल कर ली, क्योंकि स्कूल के बाद वो इंग्लैंड गए, उसके बाद एक आध साल यहाँ रहे और फिर 20 साल दक्षिण अफ्रीका गए। ऐसे में गांधी जी गुजराती के इतने माहिर कैसे हो गए, ये एक रिसर्च का विषय है। આ અંગે થોડીક વાત કરું। મેં એક કાકા સાહેબ કાલેલકરનો લેખ વાંચેલો, જેમાં એમણે કહેલું કે એમને અને મહાદેવભાઈને પોતાની ગુજરાતી વિશે ખાસો આત્મવિશ્વાસ હતો, અને એક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હતું કે ગુજરાતીની વાત આવે એટલે ગાંધીજી એમને પૂછે, સ્વામી આનંદને પૂછે, કાકા સાહેબને પૂછે, મહાદેવભાઈને પૂછે, અને એમણે કાકા સાહેબ એવું લખ્યું છે કે તેમ છતાં જે સૌથી સચોટ અને સૌથી વેધક વાત આવતી હતી એ ગાંધીજીની પોતાની વાણીમાંથી જ આવતી હતી અને સહજપણે આવતી હતી। એનો એક એમણે દાખલો આપ્યો છે કે કોઈ ગાર્ડિયન મેગેઝિનમાં એક આર્ટિકલ આવેલો અને એનું મથાળું હતું ડાન્સ ઓફ ડેથ। તો કાકા સાહેબે એનો અનુવાદ કરેલો મૃત્યુનું તાંડવ, અને ગાંધીજીને એમણે અનુવાદ બતાવ્યો, એમને અનુવાદ યોગ્ય લાગ્યો, પણ એમણે કહ્યું કે આ જે મથાળું છે એ બરાબર નથી। જો હું હોઉં તો હું મથાળું આપું, એનું શીર્ષક આપું પતંગ નૃત્ય, જે મોથ, એમને અચાનક મોથ યાદ આવે કે જે કેન્ડલ તરફ ધસી જાય, અને એના પરથી એમણે કહ્યું કે આ શીર્ષક એવું હોવું જોઈએ, એ વધારે સુંદર છે। અને કાકા સાહેબે આ દાખલો આપ્યો છે, અને અદ્ભુત દાખલો છે કે ગાંધીજી એ ભાષાને એક તો વિચાર, એની ક્લેરિટી, એનું કન્વિક્શન, ભાષા આ બધામાંથી ગણાતી હોય છે, એક જબરજસ્ત કન્વિક્શન હોય, એની ક્લેરિટી હોય, અને પછી એ ભાષાનો આનંદ લેવાની અને એને કમ્યુનિકેટ કરવાની, એમની કમ્યુનિકેટ કરવાની જે વૃત્તિ હતી એ બહુ જબરજસ્ત હતી। એ કમ્યુનિકેશનને સૌથી ઉપરનું સ્થાન આપતા હતા, અને એટલે જ આપણે જ્યારે આત્મકથા વાંચીએ ત્યારે હજી પણ એવા ફ્રેઝિસ આવે છે જે વાંચીને આપણે મંત્રમુગ્ધ થઈ જઈએ। એટલે સાદો ફ્રેઝ અચાનક આવે કે ગુનો રાંક હોય છે, રાઈટ, કેટલા ઓછા સિલેબલ્સ છે, કેટલું સીધું વાક્ય છે, પણ એની અસર જુઓ। હવે હું ભાષાંતરમાં, અને મહાદેવભાઈએ કર્યું છે ભાષાંતર, તેમ છતાં આ વાત પકડાતી નથી, અથવા તો મને અનેક પ્રકારના આગ્રહ કરવામાં આવે। આ પેરાફ્રેઝ છે, આ મારું વાક્ય છે, સોરી, પણ એ પછીનું વાક્ય ગાંધીજીનું આવે છે, પણ હું એક મટી બે ન થયો, રાઈટ। હવે એની જે સિમ્પ્લિસિટી છે અને સચોટતા છે
આ એમણે એક પોતે જે વિચારક હતા એની સાથે સાથે એમણે એક વાતને ડેવલપ કરેલી એવું મને ભાસે છે. કારણ કે બળવંતરાય ઠાકોર સાહેબ સાથે એમનો નાનપણથી સંબંધ હતો. એ મૂકવા ગયા, રાઈટ, ચીનુ કાકા યાદ દેવડાવે છે કે એ એમને બંદર ઉપર મૂકવા ગયેલા અને એ જે એમનો સિલસિલો હતો પત્ર વ્યવહારનો એ છેક સુધી ચાલ્યો. એનું એક અદ્ભુત ઉદાહરણ છે કે બળવંતરાયે એમને એક પત્ર લખેલો અને એમને એક લાંબા ઉપવાસ પછી લખેલો જેમાં એમણે કહેલું કે ચિરંજીવભાઈ મોહન, કારણ કે મોટા હતા, ચિરંજીવભાઈ મોહન, તારી ઉપર આટલું બધું વીતી રહ્યું છે એનું મને દુઃખ થાય છે, તું મારા ચોપાટીવાળા ઘરે આવ આરામ કરવા માટે. અને એમણે કહ્યું, ગાંધીજીએ સામે જવાબ લખ્યો કે જી ભાઈ મોહન, એ સંબોધન વાંચીને એટલો આરામ થઈ ગયો કે હવે આરામ કરવા આવવાની જરૂર નથી. इस एनेक्डोट के साथ मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहूंगी कि आप क्या उम्र के रहे होंगे 12 साल 13 साल जब गोली लगी? 12.5. तो 1935 इज योर ईयर इफ आई एम नॉट. तो मैं ये जानना चाहूंगी सर कि क्या आपके घर में क्या प्रतिक्रिया, हम तो फर्स्ट हैंड आप जब थे वहाँ, तो आप ये बताइए कि क्या हुआ उस दिन? तो मेरा जन्म दिल्ली का है और दिल्ली में मैं स्कूल गया और गांधी जी तो अंतिम जब उनके महीने और लगभग 2 वर्ष थे वो काफ़ी समय उन्होंने दिल्ली में बिताया. और कई दिन अपने 2 भाई और बहन और माँ बाप के साथ मैं गांधी जी की प्रार्थना सभा में दिल्ली में भाग लेता था 1947 में, 1948 में. लेकिन उस दिन जनवरी, बल्कि मैं शायद समय लूँगा अगर आप 2 मिनट देते हैं. प्लीज़ लीजिए. आपको कईयों को मालूम होगा कि उनको गोली तो 30 जनवरी को लगी. उससे 10 दिन पहले ये बम विस्फोट की घटना जाने वाले हैं. लेकिन उस समय पिंग पोंग खेलते वक्त मेरे दिल में एक अचानक ख्याल आया, नहीं, इनका उपवास बंद होने वाला है. और उसी दिन उपवास बंद भी हुआ. तो उनकी प्रार्थना सभा में शामिल होता था और आप में से कुछ को मालूम भी होगा कि उनकी प्रार्थना सभा में क्योंकि गीता के साथ साथ, भजन के साथ साथ, उपनिषद के साथ साथ कुरान का चैप्टर भी होता था, पहला चैप्टर फातिहा. और कभी कभी दिल्ली में 1947 में, 1948 में मैं उनके पास बैठता था और प्रार्थना में जब ये कुरान का पहला चैप्टर अल फतिहा पढ़ाया जाता था, उसमें सिर्फ 1 मिनट लगता था. कुछ लोग खड़े होकर कहते थे, हम नहीं सुनना चाहते हैं, बंद करो. तो गांधी जी कहते थे कि बाकी सब तो सुनना चाहते हैं, आप जानते हैं कि इसमें क्या लिखा है? इसमें तो अच्छी बातें लिखी हुई हैं. मैं सबसे पूछता हूँ, आपको आपत्ति है कि अगर हम ये पढ़ेंगे? नहीं, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है. तो गांधी जी इनसे कहते थे कि तुम भी अपना ऑब्जेक्शन वापस ले लो. वो वापस लेते थे, लेकिन कभी कभी वो वापस नहीं भी लेते थे. तो मेरे मन में ये ख्याल आया था कि अगर ये नौजवान लोग जो कभी कभी काफ़ी गुस्से से बोल रहे हैं, अगर मेरे दादा के सामने आते हैं और उनको मारते हैं तो मेरा क्या फ़र्ज़ होगा? तो ऐसा सवाल मेरे मन में आते थे. लेकिन 30 जनवरी को हमारे स्कूल में एक एथलेटिक्स का प्रोग्राम था. दौड़ में मैं भाग ले रहा था, तो उस रोज़ मैं प्रार्थना सभा में नहीं गया. तो जब मैं और मेरा भाई रामचंद्र हम दोनों वापस घर पहुँचे करीब 5:30 बजे, तो मेरे पिताजी के सेक्रेटरी काली प्रसाद जी थे, वो वहाँ हमारे बिल्डिंग के नीचे खड़े थे. जो बाहर के जो जिससे प्रगति के लिए समय बचाना और इस प्रकार से आज मेरे दृष्टि से आपकी ओर से हम ये सुनना पसंद करेंगे कि हमारा अभी रवैया क्या रहना चाहिए. वैसे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट और इम्प्रूव के लिए जितना हम स्वदेशी यूज़ करें वो तो अच्छा है, मगर फिर भी आपसे हम विशिष्ट तरीके से ये सुनना चाहते हैं. अब धन्यवाद.
मैं तो ये कहूँगा कि मेरा दिल क्या कहता है, पहले वो उस पर जाता हूँ कि, और ये तो आप जानते ही हैं कि मैं अमेरिका में प्रोफेसरी करता आया हूँ, इसलिए मैं तो दुनिया को अपनी कर्मभूमि समझता हूँ। और गुजरात के लोग, तमिलनाडु के लोग, क्योंकि मेरी माँ मद्रासी थी, और पूरे भारत के लोग तो ख़ास मेरे लोग हैं, लेकिन सारे दुनिया के लोग मेरे लोग हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए मैं तो स्वदेशी में बहुत ही बढ़िया चीज़ें हैं, और स्वदेशी भावना से हमें लाभ मिलता है, और हमें अपने लोगों की का जो काम है, अपने लोगों की जो ज़मीन है, अपने लोगों की जो भाषा है, उससे हमें विशेष प्रेम होना चाहिए, और विशेष प्रेम होना स्वाभाविक है। लेकिन सारी दुनिया के लोग मेरे परिवार के लोग हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। हाँ विवेक। हाँ सर, मेरा प्रश्न ये है कि आपने कभी बात बताई कि जब आपके पास कितनी पहुंच बना सकते हैं, कितने प्रस्तुत है? मैं अहमदाबाद पिछले 3-4 साल में काफ़ी बार आ चुका हूँ, और मैंने कई बार ये એ તો નવી પેઢીને જ પૂછવું પડે. આ પહેલો જ સવાલ મેં એમને जो नाम रखा गया है तो आपने जाहिर से बताया आपने कि आपको दिक्कत हो रहा है। एक हमारे जहन में एक सवाल और भी होता था, जब भारतीय प्रवास दिन गुजरात से गवर्नमेंट ने किया था, હું રિપીટ કરી દઈશ। आपके फैमिली में से कोई नहीं आया था। एक बात ये भी थी कि आपको इन्विटेशन नहीं मिला है, और आज अपने ये स्टेज पे देखा है कि सौरभ पटेल का अगर वहाँ तो वो प्रवचन देते हैं, आपका नाम नहीं लेते हैं, वो आप सामने बैठे हैं, तो मुझे ये सवाल है कि आपको वो पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं, या फिर पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी के फोटो को अगर आप वहाँ से याद नहीं करते हो तो ये गांधी का अपमान। कुछ कहना चाहेंगे सर आप? वो पहला प्रवासी भारतीय दिन में कोचरब में कोई इवेंट नहीं था वगैरह वगैरह, जो भी कंट्रोवर्सीज हैं आप अखबार में पढ़ चुके हैं। सिर्फ इस पर सर के कमेंट्स